सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी का हम दिल से अभिनंदन करते हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। A very good afternoon to all our esteemed guests who have graced this occasion today. I would also like to thank all the partners and representatives for their unconditional support. Life is not easy, it's very stressful. Practically everyone is struggling in their own right and leading a very unhealthy life. They wake up early, they don't eat on time, and I'm not talking about Akshay. He hardly eats. Unfortunately, most jobs today are desk jobs, and as you can see, we are sitting right now. We are not standing. And so, unfortunately, all of us are unknowingly leading a very sedentary life. No exercise whatsoever. Our entire focus is centered around earning money. I wonder why Ajinkya looks so serious. To lead a better life. But unfortunately, we spend all that hard money in paying hospital bills. Because somewhere, unwittingly, we have ruined our prime years, making sure we have a comfortable tomorrow. It's ironic, but it's true. But what is most alarming is that 1 in every 3 Indians suffers from high blood pressure, and 1 out of every 10 deaths is caused by diseases such as heart disease, diabetes, breast and colon cancer. Ladies and gentlemen, these numbers are real, and so is the worry. Somebody has to raise the alarm, and the Bhamla Foundation and MCGM together have been prompt in identifying the problem. They have joined hands to promote better health and lifestyle to reduce the risks related to hypertension and diabetes. The Bhamla Foundation has been working relentlessly towards empowering underprivileged children, providing them with a better life. They have also extended their support to other social causes such as World Environment Day, women empowerment, cleanliness and health awareness programs. MCGM, on the other hand, has been proactively working towards the betterment of the lives of every Mumbaiker with regards to education, general health facilities, art and culture, and many other aspects. Together, they have engaged 2 of the best talents in the industry to collaborate for a film that will educate about the risks posed by hypertension and diabetes in today's society. This film features one of the fittest superstars of the Indian film industry, whose discipline is as exemplary as it's well known. Actor, producer, presenter, a good father, a good friend, Mr. Akshay Kumar. A big hand for him. This film is directed by one of the most revered, celebrated and renowned directors, Rajkumar Hirani. He's unfortunately not here, but a big hand for him as well. Ladies and gentlemen, it's my privilege and honor to welcome and thank philanthropist, Mr. Asif Bhamla, Chairman of the Bhamla Foundation. The Bhamla Foundation is almost entirely
volunteer-driven organization with more than 1,800 patrons spread across several cities in the country. May I now request Mr. Bhamla to elucidate on this initiative through his opening speech. Mr. Bhamla, big hand for him. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Our esteemed Honorable Chief Minister of the state, Devendra Fadnavis ji, the star, the health focus, the cult health figure, Mr. Akshay Kumar. We have Ashish Shelar ji here, our Municipal Commissioner Ajay Mehta ji, Dr. Ajinkya D. Patil, we have Dr. Panda here, we have Sunil Kapoor ji, we have Mr. Suraj, and of course, the host for the day, Mr. Shekhar Suman ji. I think more of my foundation, a lot of it has already been said by Shekhar, but as he already mentioned, Bhamla Foundation is a volunteer-driven organization which spearheads the welfare of activities for special kids with cerebral palsy and autistics. For the past 5 years, because of the influence of the changing climatic condition and global warming, we've taken up several initiatives in the field of conservation of environment, eco-friendly measures like rainwater harvesting, solar panels. Counseling via schools has been our major activity towards our foundation. I would like to take this opportunity and with the deepest respect to the MCGM for partnering with us in this campaign. And let me tell you, this is not the first campaign. We were associated with the MCGM in the previous campaign where we worked with the Bill and Melinda Gates Foundation. Honorable MC Mr. Mehta is aware. And I think TB Harega, Desh Jeetega, jisme Bachchan Saab was the legendary figure, and he worked with us, and we had a fantastic campaign. And this time, I'm thankful to the Honorable Municipal Commissioner and Mr. Sanjay Deshmukh ji, who had, he's also here, who entrusted a lot of support and who had the confidence in us to ensure the execution of this campaign, the campaign which will be released in a few moments from now by the Honorable Chief Minister. I also take this opportunity to thank the youth icon Akshay Kumar ji, a mascot of spending their precious time, labor and energy pro bono. I think as I said, it's a commendable thing. And not to forget Ashish Shelar ji, who believed in this campaign. When we mentioned to him, although it was very last minuted, we had too many hurdles and many protocols and getting these things to. And I thank all our patrons and our friends from various walks of life who are here and who have always been with me. And I look forward for the continuous supports in various. Thank you, Asif. That was very motivating, very encouraging. I always saw you differently, but I mean, this side of yours is very endearing. I'm trying to get something from you. And highly appreciative. और अब मैं श्री आशीष शेलार जी जो बांद्रा या बैंड्रा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से एमएलए हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रेसिडेंट हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस अनोखी पहल पर अपने विचार व्यक्त करें। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी, इस स्पेसिफिक विषय के लिए जिन्होंने यहाँ पर अपने सामने आकर उत्साह भी बढ़ाया, ऐसे अक्षय कुमार जी, आसिफ भामला जी, मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर अजय मेहता जी, डॉक्टर पांडा, डॉक्टर पाटिल,
शेखर सुमन जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुंबई महानगरपालिका आणि भामला फाउंडेशन यांनी संयुक्तरित्या या शहरात, या देशात सामान्य नागरिकांमध्ये एक चांगलं अवेअरनेस स्वतःच्या स्वास्थ्याबद्दल हे सुरू केलेलं आहे. आसिफ भामलाबद्दल मी फक्त 2 मिनिटात एवढंच सांगेन, मी आणि ते दोघेही बांद्रात राहत असलो तरी आणि आज जरी वेगवेगळ्या पक्षात असलो तरी आमची व्यक्तिगत मैत्री अतिशय चांगली आहे. आणि त्यांनी ज्या वेळेला हा सगळा प्रस्ताव समोर मुंबई महापालिकेच्या आपल्या ॲडिशनल म्युनिसिपल कमिशनर देशमुख कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज ये कब आता है ये समझ में नहीं आता. इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि जिस चीज़ की पहल आसिफ भामला साहब ने की है कि अपने अपने स्वास्थ्य का हम लोग ध्यान रखें और हाइपरटेंशन से बचें और डायबिटीज़ से बचें और इस तरह की अनेक बीमारियां जो जानलेवा हैं. और आपको बता दूं कि आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रोग्राम मुझे होस्ट करना है और अब से सिर्फ 15 मिनट पहले उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी थी और आई हैड स्टार्टेड एक्चुअली हाइपरवेंटिलेटिंग बाय देन एंड आई कुड हैव डाइड ऑफ हाइपरटेंशन. लेकिन इन्होंने फिर इतनी स्वीटली सॉरी कहा कई बार, आई थॉट नाउ आई एम गोइंग टू डाई ऑफ डायबिटीज. और अब वो क्षण जिसका हम सबको इंतज़ार है, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से आग्रह करूंगा कि वो ऑफिशियली आकर ये फिल्म जो है और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का जो है कैंपेन है उसको लॉन्च करें. बुजुर्गों ने कहा है कि मशवरा तब दो जब आपसे कोई मांगे, या तब जब किसी की जान खतरे में हो. आप सबकी जान खतरे में है. एक बंदा है जो आपकी जान लेना चाहता है और मैं आपको बचाने आया हूं. फोन निकालो और नोटपैड पे लिखो, जान बचाओ डॉट इन. अगर लिख नहीं रहे हो तो याद जरूर कर लो. घर जाके इस वेबसाइट पे जाना है, मैं आपको वहीं मिलूंगा. बाय. वैसे ये कोई विज्ञापन नहीं है, मैं आपको कुछ बेचूंगा नहीं. अभी टेंशन मत लो, फिल्म देखो, मजा करो, पॉपकॉर्न खाओ. मैं वेबसाइट पे आपका इंतजार करता हूँ. ओके, सी यू सून. वेट करवाओ यार आप लोगों ने. और यहां तक आ ही गए तो मतलब ये हुआ कि आपको अपनी जान की परवाह है. गुड. पता है आपकी जान कौन लेना चाहता है? आप खुद. आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन. आपके अंदर की आवाज हर सुबह आपको कहती है, उठ जा दोस्त, आधा घंटा एक्सरसाइज कर ले. आप क्या कहते हो? नहीं, कल करो. कल फिर वही आवाज बेचारी आपको याद दिलाती है, भाई कुछ नहीं तो वॉक ही कर ले. आप कहते हो नहीं आज संडे है, मंडे को करेंगे. जब आप रसगुल्ले गटक रहे होते हो तो वही आवाज फिर कहती है, भाई रुक जा, कितना माल ठूसेगा. पर आप सुनते कहां? तो आपका दुश्मन कौन हुआ? आप खुद. अब भी वक्त है, समझ जाओ. आज मैं आपको 5 छोटे नुस्खे बताऊंगा, समझ लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी आपकी. दरवाजा खोल. 1 मिनट. अब समझ लो ये आप हो. दरवाजा खोलना है. दूसरों की नहीं, अपनी टांग का इस्तेमाल करो. दरवाजा खुद खोलो. अरे एक्सरसाइज नहीं करते हो तो कम से कम ये छोटे छोटे वॉक तो कर लो. एक बार और घंटे बजे ना, मुझे वॉक करना है. बजा बजा.
लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां ले लो। वॉक करने के लिए छोटे बहाने ढूंढो। 5वें माले पे घर है मेरा। अरे कम से कम 2 फ्लोर तो चढ़ लो, उसके बाद लिफ्ट ले लेना। धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी। फिर दिन में कम से कम आधा घंटा योगा, डांस, जिम या वॉक जरूर करना। मीठा और नमक कम करो। अगर कम नहीं कर सकते तो आधा करो, 1 चम्मच की बजाय आधा। अरे रुको, गुलाब जामुन गटकने का मन करे तो एक पूरा नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा खा लो। अंकल जी, अंकल जी अगर डायबिटिक है तो उनको मीठा बिल्कुल नहीं। ओके? कुछ नहीं। तले हुए खाने से बिल्कुल दूर भागो। अगर ऐसा लगे कि तुम इच्छा नहीं मार सकते हो तो फैसला करो कि हफ्ते में सिर्फ 1 दिन थोड़ा सा खाओगे। सैटरडे या संडे फिक्स कर लो। संडे। भाई साहब मजे से खाओ। बस सिर्फ इतना ध्यान रहे कि आपकी प्लेट में हर वक्त सब्जी की मात्रा दूसरी चीजों से ज्यादा हो। ज्यादा। भाई साहब आप सुपरमैन की फैमिली से नहीं हो। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ये सारी बीमारियां आपको हो सकती है। अगर आपकी उम्र 35 के ऊपर है तो साल में 1 बार ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए। अपने डॉक्टर से मिलो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के क्लिनिक्स में जाओ। पूरे मुंबई में कई क्लिनिक्स हैं जहां आप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान खड़ा क्यों और अफसोस आप लोग बैठे क्यों हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अब आगे का कार्यक्रम आप सब लोग खड़े होकर सुने। जस्ट किडिंग। मैं खड़ा इसलिए हूँ कि somebody has very respectfully sat on my seat, but never mind. Well, coming back to the film, that was truly inspiring. Thank you, Akshay, for such an inspirational video, and thank you, Mr. Rajkumar Hirani, once again for directing it so aesthetically. और एक बात बता दूं और उसके लिए आप लोग खुद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे, और वो ये कि as Asif had also mentioned earlier, that Akshay's participation in this entire campaign, including featuring in this film, has been gratis, as they say, pro bono. Put it simply, FOC. Put it still more simply, free of cost. Put it still more simply, मुफतिया किए उन्होंने, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये मुफ्त में करना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक्टर कभी कोई चीज़ मुफ्त में नहीं करता, और शुक्र है भगवान का उन्होंने मुफ्त में किया है, क्योंकि एक्टर अगर अपनी फीस बताए, और ख़ास तौर पर अक्षय कुमार अगर अपनी फीस बताएं, तो वो भी एक जानलेवा चीज़ साबित हो सकती है। दोस्तों, ज़िंदगी, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जितनी मुस्कुराहट आजकल सिकुड़ती जा रही है, कि आप ये समझ सकते हैं ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए टेंशन लेकर, बढ़ाकर या उसे आमंत्रित करके इसे ज़ाया करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। MCGM is a proud partner for a very long time. They have been instrumental in executing the previous campaign with Bill and Melinda Gates Foundation featuring Shri Amitabh Bachchan. This campaign could not have been possible without their kind support and patronage. और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ मुंबई श्री अजय मेहता जी को, जो इस इनिशिएटिव से जुड़ने के बारे में अपने अनुभव और विचार आपके सामने व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।
बस थोड़े से वक्फे में आपको देता हूँ। सिर्फ आधा घंटा वॉक करने से मूड बेहतर होता है। जाहिर है, बीवी आप घर में छोड़ देते हैं और वॉक करते हुए दूर चले जाते हैं। ब्रेन तक ऑक्सीजन का बेहतर प्रवाह होने से क्रिएटिविटी और सोच की क्षमता में इजाफा होता है। तो ध्यान से सुने, ऑक्सीजन का प्रवाह। वजन तो धीरे धीरे घटेगा ही, लेकिन एक दिन के कार्डियो एक्सरसाइज की जरूरत सिर्फ आधे घंटे के वॉक से पूरी हो जाती है। अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो जी, मैं डॉक्टर रमाकांत पांडा जी को यहां आमंत्रित करना चाहूंगा, जो वीसी एंड एमडी एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट हैं। अगर वो यहां हों तो सर आप हमें बताएं कि ऑक्सीजन का प्रवाह कैसे मस्तिष्क तक पहुंचता है चलने से। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं समझता हूं कि यहाँ पर सबसे बड़ी मिसाल, ये सारी बातें हो रही हैं, उसकी मिसाल सबसे बड़े हमारे सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। क्योंकि जब ये आए थे तो वैसे तो हम सब जानते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर होता है उसका एक अपना वज़न होता है, और उस लिहाज से इनको देख के उस वक्त लगता था कि ये वज़न वाले मुख्यमंत्री हैं। बट उन्होंने अपने हेल्थ को बहुत सीरियसली लिया, और ये सब बातें जो हम अभी कर रहे हैं शायद वो हमसे पहले जानते थे। एंड नॉर्मली इट टेक्स अ पॉलिटिकल अपोनेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी टू कट यू डाउन टू साइज, बट ही डिड इट अपॉन हिमसेल्फ। तो इन्होंने खुद वजन अपना घटाया और नाउ ही लुक्स फिटर, हेल्थियर एंड एन एग्जाम्पल टू ऑल ऑफ अस। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां फॉर व्हाट ही हैज डन। और अफसोस यहाँ पर कि ये जो फिल्म बनाई राजकुमार हिरानी जी, वो यहाँ नहीं हैं, और अक्षय कुमार जी के साथ उन्होंने भी काम किया और उन्होंने भी पैसे नहीं लिए, और इसके लिए हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। वरना 5 करोड़ तो आजकल लोग वैसे भी मांग लेते हैं। तो एनीवे वी sorry I'm a bit incorrigible, so और ये इनके स्क्रिप्ट में नहीं था, so you needn't feel little shy or anyway, coming back to the belief in the show, we needed the faith and belief of our partners in this initiative, and we are glad we received that in abundance. It is only because of the support of our partners and their drive to bring about a change that the hypertension and diabetes campaign could be launched. I would like to call on stage Mr. Asif Bhamla once again to felicitate our partners for extending their help in every way possible to make this campaign happen. Thank you. I have to give away the trophy, no? But you announced. Mr. Asif Bhamla will felicitate Mr. Ashish Shelar. A big round of applause for Mr. Ashish Shelar for all his support to making this event very, very successful. And now to Mr. Akshay Kumar. Thank you so much, Mr. Akshay Kumar, for all your support to make this campaign really successful. Sir Ajay Mehta ji for the support from the MCGM to make this campaign really go all over Mumbai. Thank you so much, sir. And ladies and gentlemen, Mr. Devendra Fadnavis for all his time, support for this campaign. Thank you so much, Mr. Devendra Fadnavis, for being here and making this campaign as successful.
Ladies and gentlemen, and now, for the moment all of us have been waiting for, I would now request the Honorable Chief Minister of Maharashtra to felicitate some of our partners, as this entire campaign is an outcome of Institute, India's #1 healthcare hospital, for support in production of this film. Mr. Prabal Chakrabarti, the Vice President Managing Director of Boston Scientific India Private Limited. Boston Scientific is dedicated to transforming life through innovative medical solutions that improve the health of patients around the world. Thank you for supporting this film. Dr. Gaurav Chaudhary, Senior Manager, Partnership to Fight Chronic Diseases India, PFDC, in global non-profit organization committed to raising awareness to key diseases in India with the focus of NCDs. Thank you for your support. The Yellow Elephant. The Yellow Elephant Digital Marketing Technology Partner of the campaign. Okay. We have Mr. Vivek Goenka. On behalf, we have Mr. Girish Kuber, Editor of Lok Satta. Mr. Girish Kuber, the editor, on behalf of Mr. Vivek Goenka. Mr. Sunil Kapoor will receive after this. After this, we have Mr. Arun and Mr. Gulshan Hirani, the Director of ANG Design and Studio, Arun and Gulshan Hirani. We have Mr. Fahim Batliwala, the Director of Simca Advertising, for supporting this cause. Mr. Fahim Batliwala. And the patron, Mr. Fahim Batliwala. The patron supporter of this entire campaign, Dr. Ajinkya D.Y. Patil, after this, the Chairman of D.Y. Patil Group. Mr. Romanchak Arora from Trickitainment, the production of this company. Mr. Romanchak Arora. We have Mr. Amit K. Agarwal, Supreme Aviation. Supreme, please. Yeah. Please. Romanchak. And the film which you saw, we had a very, Mr. Romanchak and the Trickitainment. Okay, what did the movie which you saw, we have a very comic side of that campaign, and we welcome Mr. Nikhil Ratnapalti, the man who's teaching us. Mr. Nikhil Ratnapalki, a well-known, talented Hindi Marathi stage TV actor. And last but not the least, hello, we have Mr. Indra Kataria and Sridhar from Everglow. Indra Kataria and Sridhar. The host of the evening, last but not least, Mr. Shekhar Suman. Thank you so much, Mr. Shekhar Suman. The last minute. Thank you so much, sir. शेखर जी, आपको खड़े रहना अच्छा लग रहा है, तो we will make you stand for some time. Yeah. Thank you so much, Shekhar ji. You've been always kind to the Bamla Foundation. शेखर जी, मेरा काम हो गया, आप प्लीज आ जाइए.
ये मेरे लिए शाम हो गई है। सबसे पहले मैं अक्षय कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आएं, दो शब्द कहें। नमस्कार। वैसे मैंने जो कुछ भी कहना था मैं कह चुका हूँ ऐड के द्वारा, और ज़्यादा कोई गुंजाइश रही नहीं। लेकिन साथ में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा जो मैं बहुत साधारण सी चीज़ है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। एक अच्छे हेल्थ के लिए ज़िंदगी में एक छोटी सी चीज़ आप लोग फॉलो कर लें। आई एम श्योर कि कई लोग करते होंगे। 6:30 बजे के बाद खाना ना खाएं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे डायबिटीज़ हो या कोई भी किस्म की हाइपरटेंशन हो या कोई भी हार्ट अटैक हो, मतलब जितनी मर्जी डिजीज़ ले आओ, एक 6:30 बजे के बाद ना खाने से आप ये सारे डिजीज़ को दूर भगा देते हैं। और जिससे मतलब एक वक्त का खाना खाना हमारे देश का फ़ायदा है। हम बहुत अन्न रहेगा, सब कुछ रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बाकी सारी चीज़ें तो मैं कह चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच। इस नसीहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जिस देश में हम लोग रहते हैं वहाँ 6:30 बजे से पहले बहुत लोगों को खाना नसीब नहीं होता है। बट दिस इज़ अ वेरी साउंड एडवाइस विच आई हैव बीन फॉलोइंग एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। 6:30 बजे के बाद नहीं खाना खाएं फॉर व्हाटएवर रीजंस। हालांकि मुझे मालूम है कि जिस तरह आप लोगों का लाइफस्टाइल है, बहुत लोगों का कहना कि भाई खाना पीना तो 6 बजे के बाद ही होता है, बट ट्राई एंड अवॉइड दैट। और अब लेडीज जेंटलमैन, मैं दरख्वास्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि वो यहाँ आएँ और अपने विचार प्रकट करें। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित और इस कैंपेन को जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया है, ऐसे हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार अक्षय कुमार जी, मेरे साथी आशीष शेलार जी, भामला फाउंडेशन के माध्यम से जो सामाजिक कार्य लगातार करते रहे हैं, ऐसे आसिफ भामला जी, डॉक्टर रमाकांत पंडा जी, अजय मेहता जी, अजिंक्य डी.वाई. पाटिल जी, सुनील कपूर जी, शेखर सुमन जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं भामला फाउंडेशन का और MCGM का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक बड़ा ही अच्छा कैंपेन उन्होंने आज शुरू किया। और जैसा हम सभी जानते हैं कि एक साइलेंट किलर के रूप में जिस प्रकार से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आज हमें अपनी चपेट में ले रहा है, एक बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है, जहाँ एक और हम लोग अलग अलग प्रकार के युद्ध लड़ते हैं और अपने जीवन में बड़े बड़े संघर्ष भी करते हैं, और कई बार इन संघर्षों का सामना करने के लिए हम तैयार भी होते हैं। लेकिन प्रायः हमने ये देखा है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, इन दोनों बीमारियों के बारे में हम लोग एक डिनायल मोड में होते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे शायद हर 5वां व्यक्ति डायबिटिक है, पर यह भी हो सकता है कि हर 3रा व्यक्ति भी हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं कि जो कभी अपना चेकअप ही नहीं करवाते। और मुझे क्या हो सकता है, इस प्रकार के एक डिनायल मोड में होते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब रमाकांत पांडा जी के यहाँ जाकर एडमिट होना पड़ता है और अपना हार्ट फिर सुधारना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अब ये सही समय है कि जब हम सारे लोग इस बात को माने कि एक साइलेंट किलर के रूप में आज ये दोनों बीमारियां हमको अपने चपेट में ले रही है, और अब इसके साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है।
और मैं सचमुच अक्षय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म के माध्यम से 5 छोटी छोटी बातों को हमारे सामने रखा है कि जो डुएबल है, जो कोई भी कर सकता है, और इससे हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर पांडा जी ने कहा कि हम लोग बीमार होने के बाद बीमारियों के ऊपर जो पैसा खर्चा करना पड़ता है, आज अगर हमारे देश की अवस्था देखें और जिस प्रकार की बीमारियों की चपेट में हम लोग हैं, हमारे जीडीपी से ज़्यादा पैसा अगर बीमारियों के ऊपर खर्चा करना पड़े तो हमारी हालत क्या होगी। और इसलिए हमारे जैसे देश में जहां हम एक बड़ी सुदृढ़ इस प्रकार की जनसंख्या को तैयार करना चाहते हैं, वह प्रिवेंशन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके लिए जागृति, कई बार जैसा मैंने कहा कि लोग डिनायल मोड में होते हैं, लेकिन अगर हम उनको जागरूक करें, और ख़ासकर आज देश और दुनिया में, भारत में भी जो ओबेसिटी अमंग्स चिल्ड्रन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो हमारे यहाँ पर एक नई पीढ़ी है, एक नई जनरेशन है, इसको जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, हमने बड़ी तेज़ी से विकास किया, भौतिक विकास बड़ी तेज़ी से किया, लेकिन जितनी तेज़ी से भौतिक विकास होता है उतनी तेज़ी से हमारे जेनेटिक्स नहीं बदलते, उतनी तेज़ी से हमारी शरीर की रचना नहीं बदलती, उतनी तेज़ी से हमारी जो आदतें बदली हुई है उसको हमारा शरीर अडेप्ट नहीं होता, और फिर ऐसा सारा शरीर बीमारियों का घर हो जाता है। ये हो सकता है कि हमारी पारंपरिक भोजन की जो पद्धतियाँ हो, उस समय के क्लाइमेट के लिए, उस समय के मेहनत के लिए, उस समय के हमारे शारीरिक सारे कार्यक्रमों के लिए बहुत पर्याप्त थी, लेकिन आज कम्युनिकेशन के माध्यम बदले हुए, काम के हमारे तरीके बदले हुए हैं, और अगर उसके साथ साथ हम हमारी आदतों को नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी रिएक्ट करेंगी, और बॉडी वो रिएक्ट कर रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज एक अवेयरनेस हम लोगों के बीच फैलाए, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये मानता हूँ कि अक्षय जी या राजू ईरानी जी, इनके जैसे जो लोग हैं कि जो बेस्ट कम्युनिकेटर्स हैं, आज एक बात कोई डॉक्टर कहे या हम लोग कोई एक बात कहे तो शायद जितने लोगों तक नहीं पहुंच सकती, उससे ज़्यादा लोगों तक आज अक्षय जी के माध्यम से ये बात पहुंच सकती है। और मैं मानता हूँ कि भामला फाउंडेशन ने बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर किया है। मैं मानता हूँ कि ये फिल्म जो है इतनी अच्छी बनी हुई है, इतना अच्छा कम्युनिकेशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ कहीं ना कहीं अपने आप को इस फिल्म के साथ आइडेंटिफाई भी कर रहा था, क्योंकि मैंने भी ये कई बार देखा है कि जब मैं एक्सरसाइज करने का सोचता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि कल से करेंगे, आज का दिन छोड़ देते हैं। और शायद यहाँ बैठे हुए 90% लोगों ने कभी ना कभी यही एक्सपीरियंस किया होगा कि कल करेंगे, आज तो छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से ये अवेयरनेस जो है, कई बार तो चीज़ें हमको पता होती है लेकिन कोई याद दिलाए तो फिर हम उसको मानते हैं, नहीं तो अपने आप से झगड़ते हैं और अपने आप को हम झूठ कहते हैं और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि आज हमारी जो नई पीढ़ी है या जो हम सारे लोग हैं, इन तक ये फिल्म पहुंचेगी तो उसके माध्यम से एक अवेयरनेस आएगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें, मसलन हम लोग थोड़ा सा वॉक करने की कोशिश करें, जितनी चीज़ें हम लोग छोटी छोटे अपने कामों में से जो एक शारीरिक एक्सरसाइज कर पाए उसको करने की कोशिश करें, या खाने में हम लोग किस प्रकार का खाना खाएं, ये सारी चीज़ें मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग मिलकर करेंगे तो एक बड़ा ही अच्छा सुदृढ़ इस प्रकार का एक समाज हम लोग तैयार कर पाएंगे। मैं आज के इस मौके पर फिर एक बार आसिफ भामला जी का, MCGM का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आशीष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आशीष जी ने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आग्रह किया और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही सार्थक इस प्रकार का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। और अक्षय कुमार जी, आपने अपने सारे व्यस्त शेड्यूल में से समाज के लिए समय निकाला। मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की महानता या किसी भी कलाकार की महानता इसमें नहीं होती कि वो कितनी फिल्में हिट करता है या कितना पैसा वो कमाता है, तो इसमें होती है कि ये सारी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद भी समाज से उसका रिश्ता क्या है, समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व क्या है। अगर वो उस बात को समझता है तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि उसी को हम लोग सुपरस्टार कह सकते हैं।
और इसलिए आपने ये सारा दायित्व यहाँ पर निभाया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वैसे एक चीज़ है कि शेखर सुमन जी अगर बोलते रहेंगे तो किसी को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन नहीं हो सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, Fataviji. But one small error. We'd like to first Mr. Sujay Jairaj Thakur, the trustee of Nursing Home Jamnabai Educational Trust. So sorry, sir, we've missed your name, Mr. Sujay Jairaj Thakur. Error from us. ये इवेंट जो आपने देखा सुना, आपने तो खुद यहाँ पर कैमरा लेके खड़े थे कि आज की इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में आप भी दौड़ते रहते हैं और हम भी दौड़ते रहते हैं, और लेकिन जहाँ सही जगह दौड़ना है, जहाँ जिम में दौड़ना है या ट्रेड पे दौड़ना है, वो दौड़ भाग हम नहीं करते। और अचानक कुछ ऐसी बीमारियाँ हमें हो जाती हैं कि जिसका पता हमें बहुत देर से चलता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जान है तो जान है। सबसे बड़ी बात तो हाइपरटेंशन की बात है, चूँकि आज प्रेशर बहुत है पैसा कमाने का, करियर में आगे बढ़ने का, आपको अपने बाइट्स लेने का, टेलीविज़न चैनल को, अपने TRP का, हर किसी को टेंशन बहुत है, और उस टेंशन से हाइपरटेंशन होता है और हाइपरटेंशन से ज़िंदगी चली जाती है। जब ज़िंदगी चलेगी ना TRP का मतलब है और ना बॉक्स ऑफिस का मतलब किसी चीज़ का नहीं। इसलिए अपने सेहत का ख्याल रखें और मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा लोगों को अवगत कराएं कि ऐसा आपको करना चाहिए। देखिए जो बेसिक चीज़ें, और सबसे बढ़िया अक्षय कुमार ने चीज़ें कि मुझसे भी लोग जब पूछते हैं कि एक चीज़ जो है वो क्या आप नहीं करना चाहेंगे, 6:30 के बाद आप खाना न खाएं, क्योंकि उसके बाद जो भी आप खाना खाएंगे वो फैट में तब्दील हो जाएगा। तो वो ख्याल रखें, चलने का प्रयास करें, ज़्यादा बैठे नहीं, तली हुई चीज़ों को नहीं खाएं और नियमित एक ज़िंदगी जिएं, जो वक्त पे उठना और वक्त पे सोना। सर ये ए दिल है मुश्किल को लेके बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या कहना ये तो चलिए क्या कहना है कि जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें कई चीज़ें अनुकूल होती हैं, कई चीज़ें प्रतिकूल होती हैं, कई चीज़ों जो हैं वो उस मामले में उलझ जाती हैं। अभी जो ए दिल है मुश्किल के साथ जो हुआ, वो नाम ही टाइटल में ऐसा मुश्किल रख दिया कि वो रिलीज़ ही मुश्किल नज़र आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फेयर नहीं है फिल्म के लिए, क्योंकि जब फिल्म में जो एक्टर साइन किए गए थे उस वक्त हालात सामान्य थे और इस फिल्म को रिलीज़ होने देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता को अगर ऐसा लगता है कि फिल्म का हमें बहिष्कार करना है क्योंकि हालात सामान्य नहीं हैं और चूंकि जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें पाकिस्तानी कलाकारों ने इसकी निंदा नहीं की, तो वो फिल्म देखने नहीं जाएंगे। और अगर देखने जाते हैं तो इसका मतलब ये फिल्म अहमियत नहीं रखती। और वैसे भी जो पाकिस्तानी इसमें कलाकार हैं उनका बड़ा एक छोटा सा रोल है इसमें। हमारे कलाकार हैं, रणबीर हैं, अनुष्का हैं, ऐश्वर्या, हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए। सर दिवाली आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो उसके लिए आप दिवाली क्यों आ रहा है बोला आपने, कहाँ से आ रहा है, आपने उसका लिंग परिवर्तन क्यों किया? तो सर एक मैसेज तो जवानों के लिए एक मैसेज यही है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि इस बार जगमगाहट वाली दिवाली, बहुत रोशनी वाली दिवाली न मनाएं। ये इसलिए सिर्फ ये एक श्रद्धांजलि है उन सैनिकों के लिए जिनके घर इस साल दिवाली में दिए, जिनके घरों में दिए नहीं जलेंगे, जहां पटाखे नहीं फूटेंगे, जहां मातम मनाया जा रहा है, उनका ख्याल रखते हुए उनको श्रद्धांजलि स्वरूप हम दिवाली को थोड़ा सा कंजर्वेटिव कर लें। जी थैंक यू। I think that's a very horrifying thought, you know. ये फैक्ट है कि बहुत लोग हैं जो टेस्ट करवाते ही नहीं, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि पता भी नहीं चलता उनको। और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन तब डिटेक्ट होता है जब एडवांस स्टेज पे होता है। सो यस, रेगुलर टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इन एनी केस। सो I think the Honorable CM was here. I would request CM sir to please give a thought to the Mumbaikars and the fact that we need more open spaces, playgrounds, outdoor gyms, you know, so that yoga by the bay is a wonderful initiative. But yes, this awareness is a very, very commendable effort, and I think that everybody involved with this is it's amazing work. Ma'am, Diwali is coming right now. What's your message for our Jawans? Your message to our Jawans? We are all there for you, and we are all very grateful to you. And you are there in our hearts, and I don't think we can ever do enough for you. So, just gratitude. God bless. Thank you, ma'am. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.